Bismillahirrahmanirrahim. Department of Medical Education, College of Physicians and Surgeons, Pakistan conducted the training course for examiners at CPSP Provincial Center, Peshawar, which was participated by over 200 examiners across the province. The current council after 18 March 2023 is on continuous quality training and refresher courses for examiners and supervisors. The Department of Medical Education already conducted these refresher courses at Karachi headquarters, Quetta, Multan, Bahawalpur, Lahore and Abbottabad. Director General Medical Education Professor Dr. Amir Zaman Khan, Director General National Residency Program Professor Dr. Mahmood Ayaz, Director General International Relations Professor Dr. Muhammad Asghar Bhatt, Senior Vice President Professor Dr. Muhammad Shoaib Shafi addressed the audience, followed by the vote of thanks by Professor Dr. Muhammad Jahangir Khan. President CPSP Professor Dr. Khalid Masood Gondal shared the current updates of CPSP and future vision, especially focusing on standardization, quality assurance, and strengthening of overseas relationship. While addressing the examiners, he said, I'm just going to update about the CPSP updates, the future vision, and the steps which we are going to take about the quality training and standardization. और 18th मार्च के बाद जब हमने एनालाइज किया, वी सेड यस देयर आर चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को हमने एड्रेस करना है. एंड वी डिड नॉट स्लीप इवन फॉर ए सिंगल डे. हर दिन कुछ ना कुछ एकेडमिक्स पे, रिसर्च पे, स्टैंडर्ड पे, क्वालिटी पे, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन पे काम होता रहा. और कुछ प्रोफेसर आमिर जमा और मेरे कोलीग्स ने बात की है और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. Now starting from this legend, Lieutenant General Wajid Ali Barki, your institution was established by the Act of Parliament in 1962. So जो कॉलेज की अपनी autonomy और empowerment है, that is and that will remain continue with the support of the fellows, supervisor, examiner and you people sitting in this hall. Now this is the governing body of the college elected by you people, led by the president, 2 vice president, treasurer, 16 काउंसलर. और ये काउंसिल के मैंडेट में है पॉलिसी बनाना, विजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ द बायलॉज इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑर्डिनेंस और इसके साथ दीगर फंक्शन. Now these are the people responsible अच्छी और बुरी चीज़ और फ्यूचर विजन, and they are elected by you depending upon the ratio of the fellows and the act of the parliament. Now coming back to the challenges of the medical education. Now we all know the challenges, they are related to the undergraduate medical education and postgraduate medical education. Undergraduate I am not going to discuss कि प्राइवेट में क्या है, पब्लिक में क्या है, फॉरेन ग्रेजुएट आ रहे हैं कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे उनका स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म करना है. पोस्ट ग्रेजुएट के जो दोनों सिस्टम है, यूनिवर्सिटी और CPSP, इस पे क्या इफेक्ट है अंडर ग्रेजुएट का, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड इट्स चैलेंजेस. The world is facing the challenges and so is by the region. In our region, the epidemiology is different, disease pattern is different, and we have got the different challenges. And these challenges, they relate to the induction. In the past, it was haphazard, now it's twice a year. Then during the phase of training, about the accreditation, curriculum, model of training, supervision and monitoring. और 18 मार्च से पहले द कॉलेज, हमसे पहले जितने दोस्त हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. एंड अगेन आई विल सल्यूट लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, उनकी तमाम कौंसल, प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान फारूकी, उनकी तमाम कौंसल, प्रोफेसर जफला चौधरी, उनकी तमाम कौंसल और फिर आज तक कुछ स्ट्रेटजीज पहले बनी. दो स्ट्रेटजीज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. उसमें पॉलिसी और क्राइटेरिया बनाए गए एक्रेडिटेशन के, री एक्रेडिटेशन के. इंडक्शन जब स्ट्रीमलाइन की गई 10 साल पहले, तो ये 11 डिफरेंट डिसिप्लिन में ट्वाइस इन ईयर. इसी तरीके से वी हैड द करिकुलम एंड फैकल्टी बट कीप ऑन अपडेटिंग दोस करिकुलम, बट वी मेड दी स्ट्रक्चर व्यू करिकुलर डिस्प्ले चार्ट विद योर हेल्प. फिर एक बात ये की गई क्वालिटी के बारे में कि MCQs सारे पुराने हो चुके हैं. 3,50,000 MCQs तमाम रिवैम्प किए जा रहे हैं विद द एडिशन ऑफ न्यू MCQs.
एंड देन देयर वर 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनको रिवैम्प किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जिसको लीड कर रहे हैं प्रोफेसर आमिर जमा। आज की एक एक्टिविटी उसी का एक मजहर है। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द सेम डिपार्टमेंट, जिसमें ये अंडर ग्रेजुएट के लिए वर्कशॉप हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वर्कशॉप हैं। 71,000 ट्रेनी दे हैव अटेंडेड दीज वर्कशॉप इन लास्ट 5 ईयर। 13,000 सुपरवाइजर दे हैव अटेंडेड दीज वर्कशॉप। और फिर स्टैंडर्ड और क्वालिटी के लिए क्या क्या किया गया? एक्रीडिटेशन ऑफ यूनिट एंड इंस्टीट्यूशन, एक्रीडिटेशन ऑफ सुपरवाइजर। इंडक्शन के साथ हमने ये जो स्ट्रक्चर व्हील करिकुलर डिस्प्ले चार्ट बनाए, इसमें ऑब्जेक्टिव ये था द स्टूडेंट शुड अटेन द कॉम्पिटेंसी एंड द एडिक्वेट नंबर ऑफ द केसेस। अभी इसमें डाइल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग है, बट डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज गोइंग टू एड्रेस दैट। और फिर ई लॉग पे एंट्री ऑफ द वर्क, कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब रेजिडेंसी प्रोग्राम, रोटेशन, मैंडेटरी वर्कशॉप एंड देन समथिंग अबाउट द रिसर्च। रिसर्च के बारे में भी बात की गई। पहले तो रिसर्च थी ही नहीं। जब ये मुमताज़ मरवत और हमारे दोस्त साहबजादा नूर साहब वगैरह जब हम लोग पार्ट 2 में अपीयर हुए थे तो 2 और 3 साल का सर्टिफिकेट था, रिसर्च का कंसेप्ट नहीं था। सिनॉप्सिस लेके आए, डेस्टिनेशन लेके आए, प्रोस्पेक्टिव स्टडी लेके आए, फिर डेस्टिनेशन और सिनॉप्सिस का तमाम रीजनल सेंटर पे इवैल्यूएशन स्टार्ट हुई। लेकिन फिर ये सवाल आया कि नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, इश्यू ऑफ प्लेजरिज्म है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग व्हिच वर पॉइंटेड आउट यू पीपल। तो काउंसिल ने इस मीटिंग में कहा कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन टू द ओरिजिनल रिसर्च पेपर, मेक ऑडिट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। सो 2024 में ओवरलैपिंग है डेस्टिनेशन रिसर्च पेपर की, एंड 2025 में there will be no destination original research paper. They will be mandatory to appear in the examination, 1 paper for second fellowship and 2 paper for first fellowship examination. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम लेके आ रहे हैं। Again coming to the quality assurance, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये इंश्योर कर रहा है ट्रेनिंग की क्वालिटी के लिए एक्रीडेशन, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट ओवरआर्चिंग कॉम्पिटेंसी, सिंगल करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड चार्ट, क्वालिटी इन द एग्जामिनेशन। इसमें इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं, ब्लू प्रिंटिंग है, आइटम बैंकिंग है, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन, मल्टीपल असेसमेंट टूल, गाइडलाइन फॉर एग्जामिनर, रिफ्रेशर कोर्सेज। आज उसकी ये मिसाल है, रूब्रिक फॉर स्कोरिंग पैनल ऑफ एग्जामिनर। नाउ वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व फॉरेन एग्जामिनर इन एवरी एग्जामिनेशन। वी कीप ऑन इन्वाइटिंग द फॉरेन एग्जामिनर, पैथोलॉजी में आए, सर्जरी में आए, बाकी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, एंड देन पोस्ट हॉक एनालिसिस, डिफिकल्टी इंडेक्स, रिलायबिलिटी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स, ये तमाम। इसके साथ एक और जो चीज़ थी, वो डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर महमूद अय्याज, जिसमें वो बात कर चुके हैं टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनर एक्रीडिटेशन, ट्रेनर ट्रेनी रेशो, एंड सिमिलरली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज से 4-5 साल पहले हमने बात की कि तमाम इंस्टीट्यूशन हेड्स को लिखे कि अपॉइंट करें प्रोग्राम डायरेक्टर एंड ट्यूटर्स। उसका फॉलोअप बेहतर नहीं था, 10% से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं था, बट वी आर अगेन गोइंग टू राइट देम कि हर इदारे में ट्यूटर और प्रोग्राम डायरेक्टर हो जिसका लिंक हो विद द डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। ई लॉग सिस्टम एक नई चीज़ थी। अब ई पोर्टल, 35,000 ट्रेनी आईडी पासवर्ड, सुपरवाइजर आईडी पासवर्ड विद 360 डिग्री मॉनिटरिंग। इसमें भी क्वालिटी एश्योरेंस को लाके कोशिश हमारी है कि ई लॉग को लिंक कर दें विद EMR ऑफ द हॉस्पिटल एंड स्ट्रक्चर व्यूअर करिकुलर डिस्प्ले चार्ट, ताकि मॉनिटरिंग भी बेहतर हो और एजुकेशन रिसर्च में इसको हम यूटिलाइज कर सके। देन एडवांस स्किल कोर्सेज, CPSP इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जहां ATLS, ACLS, PALS आल्सो ये तमाम कोर्सेज हो रहे हैं, और 23,000 रेजिडेंट ने ये कोर्स अटेंड किए, 500 प्लस हमारे सुपरवाइजर मौजूद है इस वक्त, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस फीचर। 17 नवंबर का ये कोर्स, एंड नाउ कमिंग बैक अगेन टू द 18th मार्च। 18th मार्च को जब इलेक्शन हुए तो फौरन सबसे पहले हमने तमाम फैकल्टीज को बुलाया। 31 मार्च मेन फैकल्टीज सर्जिकल एलाइड, मेडिकल एलाइड, डेंटिस्ट्री, इन तमाम फैकल्टीज की मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा कि यस देयर आर चैलेंजेस। क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बात फैकल्टी ने भी की, और उसके बाद अभी आमिर बिलाल साहब सुबह मौजूद थे, इनकी वसादत से प्राइम मिनिस्टर से जब हमारी मुलाकात हुई लास्ट मंथ, तो ये बात तो की गई कि CPSP इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन
और 90% प्लस क्वालिटी स्टैंडर्ड CPSP इस पे काम कर रहा है, रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन है, बट जो 10% गैप है, वी आर गोइंग टू फिल दैट गैप with the collective effort and the team spirit. I just wanted to convey thanks to Dr. Riaz Anwar. इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है CPSP के लिए और CPSP की काउंसिल और इसकी स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वालिटी के लिए। और इसके साथ जो स्टैटिस्टिक्स CPSP का है, जहाँ हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेके आना है, आपके 50,000 स्पेशलिस्ट हैं, आपके 35,000 ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोसेस में, आपके 6,000 के करीब सुपरवाइजर हैं, आपके 400 प्लस इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान से बाहर। जब नंबर ऑफ ट्रेनिंग बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ती हैं, नेचुरली क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। बट आई एम श्योर विद दिस काउंसिल, विद दिस फैकल्टी, विद योर हेल्प, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन द एब्सोल्यूट टर्म एंड द क्वालिटी एश्योरेंस विद द हेल्प ऑफ यू पीपल, टीम स्पिरिट एंड कलेक्टिव विजडम। एक चीज प्रोफेसर महमूद अय्याज साहब जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 1:8 रेशो। 1:8 रेशो का प्रॉब्लम हमें KPK में है। देर आर सम इंस्टीट्यूशन जहाँ लोग बात करते हैं 20-25 है, एंड देर आर सम इंस्टीट्यूशन जहाँ एक सुपरवाइजर, 4 सुपरवाइजर, ट्रेनी 2-3 है। बट NRP इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट कि ये रेशो 1:8 हम मेंटेन कर रखें। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर आवर सिस्टर्स एंड द डॉटर्स कि शुरू में जब ओपन मेरिट हुआ तो 70% अंडर ग्रेजुएट में फीमेल स्टूडेंट थी, पोस्ट ग्रेजुएट में वो रेशियो 24%, फिर 48%। ह्यूमन रिसोर्स उस अंदाज में यूटिलाइज नहीं हो रहा था। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी दिस रेशियो इज नाउ 57% फीमेल्स। लेकिन थोड़ा सा KPK में देखने वाली बात है, पंजाब में 60% है, सिंध वाले और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन KPK में और प्रॉब्ली बलोचिस्तान में ये रेशो तकरीबन 50-50 के करीब होने जा रही है। बट आई एम श्योर दिस विल ग्रेजुअली द रेशो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। जब 18 मार्च को हमने देखा कि हमारे दोस्त जो कंटेस्ट कर रहे थे दूसरी तरफ से, उन्होंने बात की क्वालिटी ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है, MCQs ठीक नहीं है, इनका एग्जामिनर्स जो है वो ट्रेंड नहीं है। हमने उनको एनालाइज किया एंड आई शुड नॉट से कि हमारी सारी चीज़ें ठीक थी, नहीं, दे वर करेक्ट 60 to 70%। वी एनालाइज दोज थिंग एंड वी कंक्लूडेड दैट देयर आर इश्यूज, स्टैंडर्डाइजेशन की इश्यूज, क्वालिटी के इशू। एक्रेडिटेशन हम कर चुके हैं, लेकिन एक्रेडिटेशन के बाद री एक्रेडिटेशन, डी एक्रेडिटेशन अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। और हमने 18 मार्च के बाद 2 काम किए क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। ज़िया साहब, एक हमने ये काम किया कि एक्रेडिटेशन पहले ये था कि पेशावर के दोस्त सवाल जाके करते थे, 18 मार्च के बाद का कि एक्रेडिटेशन अक्रॉस द प्रोविंस होगी। पेशावर में कराची से लोग आएंगे, लाहौर में कराची से लोग आएंगे, पेशावर के लोग साउथ पंजाब कराची जाएंगे, सेम प्रोविंस की एक्रेडिटेशन नहीं होगी। और सीनियर मोस्ट पीपल दे विल गो फॉर द एक्रेडिटेशन विद द कंसेप्ट ऑफ री एक्रेडिटेशन एंड डी एक्रेडिटेशन। और यही चीज़ हमने इम्तिहान में की। 18 मार्च के बाद अगर IMM एग्जामिनेशन में 8 साल का तजर्बा है तो एक एग्जामिनर 8 साल से कम तजर्बे वाला नहीं गया। पार्ट 2 में अगर 10 है, एक एग्जामिनर 10 साल से कम तजर्बे वाला नहीं गया। और ऑब्जर्वरशिप होना मस्ट। इसी तरीके से इवैल्यूएशन में आज सुबह आपसे बात की, इनोवेशन लेके आनी है 1.5 घंटे में। यू कैन नॉट असेस द कैंडिडेट। सो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, दीज आर द कंपोनेंट एंड दीज आर द टूल्स कि आप थ्रू आउट असेसमेंट कर सकते हैं। फिर पूरी दुनिया में रीसर्टिफिकेशन, रीवैलिडेशन है। वी हैव टू ब्रिंग दैट कंसेप्ट हियर टू एम्पावरमेंट ऑफ फैकल्टीज के साथ ओवरसीज रिलेशनशिप की स्ट्रेंथनिंग। इन तमाम चैलेंजेस को जब सामने रखा गया तो फिर हमारी फैकल्टीज ने कहा कि गोल सेट करें। आमिर जमान साहब ने कहा गोल सेट करें, ये शॉर्ट टर्म गोल, ये लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में पहले वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट 2023 में कंसेप्ट आया, गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट इन 2024 फॉर एवरी स्पेशलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ गुड एकेडमिक स्टैंडिंग, जो सुपरवाइजर बेहतर अंदाज में सुपरवाइज कर रहे हैं दे विल गेट दिस सर्टिफिकेट। MCQ बैंक्स तमाम रिवैम्प हो रहे हैं, नए MCQ इसके ऐड किए जा रहे हैं, करिकुलम रिवैम्प हो रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर की आज ये 7th और 8th वर्कशॉप है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। द हॉल इज फुल ऑफ द सीनियर सुपरवाइजर एंड द एग्जामिनर। और एक और चीज़ स्टैंडर्ड के लिए हम कर रहे हैं, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन तशरीफ फरमा है, तमाम को परफार्मा चला गया।
जो सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ एक्रीडिटेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज इज गोइंग टू आस्क डू यू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ CPSP? इफ दे से यस वी मीट द स्टैंडर्ड, हम उनको वेरीफाई करेंगे, री एक्रीडेट करेंगे, एंड इफ दे डू नॉट मीट, एक दो खत के बाद आई एम अफ्रेड दे आर गोइंग टू बी डी एक्रीडिटेटेड। और ये 31 मार्च के बाद 17 मई पहली मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप कराची में हुई। उसके बाद ये लाहौर, आप ही की तरह तीनों हॉल्स फुल थे, 100+ सीनियर एग्जामिनर। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, कोयटा शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसके बाद हमने कहा हैदराबाद, इंटीरियर सिंध, वहाँ वर्कशॉप में हमने गए। फिर साउथ पंजाब, मुल्तान और भावलपुर। आमिर जमान साहब का टारगेट है every examiner should undergo these refresher course and every supervisor should undergo these refresher course। और इसके साथ फिर हमने कहा कि इंटरनेशनल दुनिया को भी पता लगे कि yes this is a CPSP क्वालिटी और स्टैंडर्ड में बिलीव करता है इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। हमने 27 फरवरी को 2024 की कॉन्फ्रेंस, ये उसका थीम, ये तमाम लोग आ रहे हैं, रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपको भी इन्विटेशन है, फिजिकली आएँ, एंड द सेंटर विल बी कनेक्टेड थ्रू वीडियो लिंक टू द रीजनल सेंटर, पार्टिसिपेट कीजिएगा। और इसके बाद अभी कराची की कॉन्वोकेशन, इसमें भी चीफ मिनिस्टर आए, कॉलेज के बारे में अच्छी बात की, और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए ये आखिरी स्लाइड है। 2026 के लिए एक्रीडिटेशन है और ACCME एक ही इदारे की एक्टिविटीज़ को तस्लीम कर ली है, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन, दैट इज़ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान। और ये दुनिया के डिफरेंट रिकग्निशन है जो दुनिया ने की CPSP की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। और फ्यूचर विजन में वी फील CPSP काउंसिल विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी एंड यू पीपल is on continuous improvement of quality and standard. CPSP to be recognized as international training and advisory center in the world. CPSP's greatest strength is not the example of power but the power of our own example. और मैं ये समझता हूँ कि CPSP ना प्रेसिडेंट है ना काउंसिल है, CPSP हमारे एग्जामिनर है, CPSP हमारे सुपरवाइज़र हैं, CPSP हमारे फेलोज़ हैं, यू आर CPSP। और कलेक्टिवली इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।